Good morning, students. Hope you are clear with the addition and subtraction of fractions. Today we will study about the comparison of different fractions. Basically, there are two methods for comparing the fractions. First is by cross multiplication method. Suppose we are having two fractions, a by b and c by d. Now a by b is greater than c by d if AD is greater than BC. Now what is this AD and BC? By cross multiplication, to compare these two fractions, what we do, we cross multiply the fractions. A is multiply D and B is multiply C. Clear? If AD means the product multiply of A and D is greater than the multiplication of B and C, then our this fraction is greater. Clear? If A by B is less than C by D, A by B is less than C by D if A by B हमारा लेस कब होगा C by D से, if AD is less than BC. अगर ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, AD हमारा छोटा आएगा BC से, तो हमारा A by B it is less than C by D. And third case is of equal. A by B is equals to C by D if AD is equals to BC. Clear? This is the first method. Let me clear this with the help of one example. For example, we have to compare 5 by 7 and 9 by 8. Now this is A by B and this is C by D. We have to compare this with the help of cross multiplication method. हम कैसे करेंगे? We find AD, cross multiply करो, A is multiplied by D, 5 multiplied by 8 and 7 is multiplied by 9. 7 multiplied by 9. 5 8s are 40. 7 9s are 63. Now this is our AB, AD and this is our BC. Now AD is less than BC. AD is less than BC. So when AD was less than BC, then A by B is less than CD. Means this fraction is 5 by 7 is less than 9 by 8. This is the first method to compare the fractions. The second method is by equating the denominators. Basically we use this method by equating the denominators. Denominators को equate करते हैं हम लोग. Suppose we are having two fractions, we can take same example को ही हम करते हैं. अब comparison इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दें, सेम बना दें, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस अगर हम लाइक फ्रैक्शंस बना दें तो इजी हो जाएगा कंपेयर करना. सो हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल? वी विल फाइंड द LCM ऑफ डिनोमिनेटर 7 and 8. 7 and 8 बोथ 7 इज़ अ प्राइम नंबर. जब भी एक प्राइम नंबर आपके पास होगा ना, तो हमें LCM फाइंड करने की ज़रूरत नहीं. वी जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड फाइंड द LCM. सो LCM इज़ 7 8 are 56. 56 is the LCM. Now what is the other thing? Convert the denominators of each fraction equal to both numerator and denominators. अब इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने 56 बनाना है. हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया, LCM आ गया 56. नाउ हमारा क्या मोटिव हो जाएगा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में हमने 56 लेकर आना है. अब वो हम कैसे लेकर आएंगे? वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड. 5 by 7 फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा. यहाँ पर 7 की जगह 56 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नो 7 के टेबल में 56 आता है. 7 8 जा 56. तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई
both numerator and denominator by 8. Clear? To make the denominator 56. So here 5 8s are 40 and 7 8s are 56. Clear? Now similarly for the second fraction 9 by 8. 8 के टेबल में 56 कहाँ पर आएगा? 7 पर. सो 7 से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. ऐसा नहीं कि हमने डिनोमिनेटर में 56 बनाना है तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे. नो, बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. सो इट विल बिकम अपॉन 56. सो विच इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन? अगेन दिस इज़ ग्रेटर. इफ़ वी कंपेयर 40 बाई 56 एंड 63 बाई 56. अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारा कंपैरिजन ईजी हो गया. हम सिर्फ न्यूमिनेटर्स को देखकर कंपेयर कर सकते हैं. न्यूमिनेटर में हमारा 63 बिगर है तो मीन्स 9 बाई 8 इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन. और अगर हमने पहले वाले मेथड से देखा क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो वहाँ पर भी हमारा 9 बाई 8 ग्रेटर फ्रैक्शन आ रहा था. सो दिस इज़ हाउ वी डू कंपैरिजन ऑफ द fractions. Now comes the ordering of fractions. Ordering means arranging the fractions in ascending or descending order. Ascending and descending order. Suppose we are given with some fractions and we have to arrange them in ascending order. We are given with 2 by 3, 5 by 6, 7 by 18, 1 by 24. इसमें भी हम क्या करते हैं फॉर द ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस. अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शंस तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो हम डायरेक्ट उनको डिनोमिनेटर्स उनके सेम होंगे तो हम डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स देखकर उनको अरेंज कर देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में. बट नाउ इफ़ दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस लाइक दीज फ्रैक्शंस तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी सेकंड मेथड सीखा बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स. कंपैरिजन में हम डिनोमिनेटर्स सेम बना लेते थे और उससे हमें पता चल जाता था कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है. इन दिस केस ऑल्सो ऑर्डरिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि विच फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ ग्रेटर. सो उसमें भी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन. जितनी भी फ्रैक्शंस हमें गिवन है उन सब का हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे. सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 18, 24. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 8s are 24. Now 2 1s are 2, 3s are 6, 2 4s are 8. Now 3 1s are 3 and then 4 is left, then 4 1s are 4. What we get the LCM? LCM क्या आएगा हमारे पास? 3 multiply 2 multiply 3 multiply 4. 3 2s are 6, 6 3s are 18 and 18 4s are